Regular hand washing is the best way to avoid falling sick, keep germs away, and also the spread of germs to others. Information and awareness is the best way to change lives. And who would be the best agents of change? Of course, children, because they not only take the message home, but in the communities. क्योंकि बच्चे agents of change का सबसे अच्छा जरिया हैं. लेकिन स्कूलों की इसमें एक बहुत बड़ी अहमियत है. They play a very important role in keeping messaging positive behaviors in a structured and sustainable manner. Today on Hand Hygiene Day, we are having Swachhta Ki Pathshala, where we have with us cricketer Suresh Raina, Priyanka Raina, both of whom who believe in giving back to society. They worked in sanitation, mother and child health, and also joining us is Mohammad Asif from Plan India. Thank you so much for joining us today. So आज ये स्वच्छता की पाठशाला में हमारे पास बच्चे हैं, ये बहुत एक्साइटेड है हम सबसे बात करने के लिए, खासकर सुरेश. टू स्टार्ट विद यू, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, kids, the youth look up to you. What is the connection between discipline and healthy habits कि सही समय पे हम स्टार्ट करें? आप इन बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले थैंक यू सो मच NDTV और स्वच्छता की पाठशाला है. एज यू सेड, बच्चे यहाँ पर आए हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन यू लुक आफ्टर लॉट ऑफ डिसिप्लिन लाइफ. एट द सेम टाइम यू नीड टू बी make sure you're healthy, make sure you sanitize. So many ways we can look after your body, because once you get sick, once you get ill, you won't be able to play the game. So उसमें बाहर बैठने से अच्छा है make sure you clean everything, like brushing your teeth or sanitizing your hand. Make sure you look healthy. When you sweat, you look after your body. Then you need to take warm shower or cold shower or doing icing. There's so many ways to be healthy. But as you mentioned, I think it's very important to teach a lesson to kids. I think half of the time kids spend their time in the school. So yes. School is a very very important way to clean yourself, because जब हम घर से निकलते हैं मम्मा नहलाती है, मम्मा डैडा जो भी प्लान करते हैं, but I think everything starts from the school. That's where I have learned from my boarding school. Priyanka, आप you're a mother of 2 kids. Yes. How do you ensure कि बच्चे आपके बच्चे हाथ धोते रहे, साफ सफाई रखें? How do you create a hygienic environment? Because I'm always struggling with my 2 boys. Have you washed your hands? Yes. Before or after? So how do you do that? I think it just never stops. You have to be after them all the time as parents. And as you rightly said, awareness is very important, right? So you have to educate the children. उनको बहुत young age से समझाना पड़ता है कि hygiene important क्यों है, hand washing important क्यों है. I think बच्चों के साथ बहुत बड़ा factor है. You cannot just tell them to do something. You have to explain to them why it's essential, why it's important. So अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, 3 and 7. तो one of the most important thing, I think, lead by example. So अगर बच्चे हमको वो habits develop करते हुए देखते हैं या कुछ practices follow करते हुए देखते हैं तो खुद भी उसको करना चाहते हैं. पर जैसे आपने कहा, we need to inculcate it ourselves, need to be good role models as parents. So the Dettol School Hygiene Curriculum Program जो 2014 में शुरू हुआ था, वो हुआ था actually 2500 schools से, and today it's reached across to 24 million kids across the country, which is a huge number. And it's not कि सिर्फ हिंदी में है, लेकिन अलग लैंग्वेजेस में भी है, संस्कृत में है, उर्दू में है, ब्रेल में सिखाया गया है. क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हम किसी को पीछे ना छोड़ें, leaving no one behind, it's important that it reaches out to everybody. So you've been working on ground. Can you tell us what is the impact you've seen in the schools where the curriculum is there? So just taking off from what Priyanka ji just mentioned, so the whole idea is about how do we bring behavior change, and there are ways in which this program is trying to reach out. And since 2014 when we started, it's about 8 years, and we started with the ambition of touching 2,500 schools in 2014. And today the outreach has been 840,000 schools in the country, which is 8 lakh. Our studies have shown that when we started in 2014, there were 11% children who were practicing hand hygiene. Today it's touched 82% of children, which is incredible. So we see it on ground. Actually, it's a huge number. 11%, 80+% is a great number. Congratulations on the work. Suresh ji, जैसे कि Mohammad Asif ji just told us that the work, the impact they've seen in those schools. I think बच्चे भी जानना चाहेंगे कि आपने भी उत्तर प्रदेश के करीब 30 स्कूलों में, सुरेश राणा जी, प्रियंका जी ने, they have taken care of those schools. You've built sanitation facilities, toilets. आपने साफ पानी की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई है. तो आपने क्या impact देखा है when you go back
कि वो बच्चे उन सुविधाओं को यूज़ करके उनकी ज़िंदगी में किस तरह का फ़र्क पड़ा है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक स्टार्टेड इन गाजियाबाद और मेरे बर्थडे पे किया था वो। आई थिंक गाजियाबाद में वो स्टार्ट हुआ क्योंकि मी एंड प्रियंका वी ऑलवेज थॉट, माय फादर केम विद मी एक्चुअली, ही इज नो मोर नाउ। आई थिंक ही ओनली टोल्ड मी एंड प्रियंका प्लान्ड इट टू डू इट ऑन माय बर्थडे। So I think that was very close to our house, all the schools there. And coming from the smaller state, I think it's very important to give it back to your own children or own society kids. I think that way is very important to do something special because we are fortunate. God has been really kind. कि लोग हमें जानते हैं तो थोड़ा भी हेल्प होगा तो I think बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं किस तरह आप कमिटेड है, ना सिर्फ टॉयलेट्स बनाने में लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, आपने मटर्नल हेल्थ पे, बच्चों पे, क्योंकि ये सब कोर है। अगर एक वुमन, इफ अ मदर इज स्ट्रॉन्ग तो बच्चे भी स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट प्रियंका? आप उसी क्षेत्र में काम करते हैं थ्रू द ग्रासिया Raina Foundation. Tell us about that. How do you and Suresh work? And also it'll be interesting for Asif ji because I think the mission is the same, to ensure health for all. Absolutely. So we started the foundation with maternal health program because that is something I really felt for right after I became a mother myself. Yeah. And we used to do a lot of workshops and awareness campaigns, health camps for these women, educate them about their own health. But very soon हमने realize किया कि maternal health से पहले हमें फाउंडेशन टाइम से स्टार्ट करना होगा। सो हमने फिर एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम, वी कॉल इट राइट एज. So it's Right Adolescent Girl Education. We started across different schools in India where we, even before you become a mother, there's so many things you need to take care of yourself, right? When you are a young girl, you need to prepare your body with right nutrition, with right hygiene, sanitation, but it has to start from school. I think school is the best place to start. Indeed. Today, the Berega Swasth India Detol is, launching the DIY kits. So there's do-it-yourself kits, जो अभी हम इंग्लिश में लॉन्च कर रहे हैं, फिर दूसरे it will be in different languages across all the schools, the private schools. It started with the government schools, but अब across हम करना चाह रहे हैं ताकि ये बच्चे खुद कर सकते हैं, जो हम सब इतनी एक्टिविटीज सुनते हैं ना, do it yourself. So I think Suresh, I'm going to ask you if you could please unveil the book for us. बिल्कुल। बेटा आप ये बुक्स लेके आ सकते हैं प्लीज? आपने हैंड वॉश किए? So that is the do-it-yourself kits which we are launching across India. They're going to be going across to all the schools in India. Can I keep one of these? Yes, absolutely. Yeah, it will be interesting for your children to see. Let's Exactly. see. Yeah. So, Really nice. so they're going to be workbooks, and let's see what these workbooks have. And since we have launched this book, let's just go across to Rekit's Ravi Bhatnagar, who's going to tell us why is there a need for these books? Why did, after the curriculum, why was it important for these do-it-yourself kits? ये जो DIY किट्स थी, हमें लगा अगर गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के अगर बच्चों के लिए किट्स हैं, तो जो स्कूल्स जो इंटरनेशनल सिलेबाई जो पढ़ाई कर रहे हैं, ब्रिटिश स्कूल में है, अमेरिकन स्कूल में है, ICSE बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारे बोर्ड्स में बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग तरह से, तो उनको क्यों पीछे छोड़ा जाए? तो ज़रूरी है कि कुछ ऐसी किट्स बनाने की हमें लगा कि कुछ ज़रूरत है हमें, जो कि डू इट योर सेल्फ किट्स हैं, जिसके अंदर पीयर लर्निंग मॉड्यूल्स है और पीयर एजुकेशन के थ्रू बच्चे खुद उससे सीख सकते हैं। और ये 2 एज ग्रुप्स के लिए बेसिकली ये किट बनाई गई है, तो बच्चे इस किट्स को यूज़ कर सकते हैं, खुद खेल सकते हैं। इसमें उनको हाइजीन एट होम, हाइजीन इन नेबरहुड, पर्सनल हाइजीन, हाइजीन ड्यूरिंग इलनेस, ये सारे सब्जेक्ट्स को हमने कैटर किया है। थैंक यू। आपके कुछ सवाल है बच्चे बिफोर वी गो ऑन? जी बताइए, क्या सवाल है आपके? सर आपसे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना है सर, पर कह देता हूँ सर, आपके बारे में हमने सुना तो सर आप बहुत है सर, क्या कहते सर, आपने मेहनत इतनी की है सर, हमें भी तो सर आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए सर। हमें तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता सर ज़्यादा, लेकिन सर आपने सर जैसी हिम्मत की है सर, आप
इतने बड़े क्रिकेटर बन गए सर, आपका नाम रोशन हो गया है। सर हमने आपके बारे में ये भी सुना था कि आपको मिस्टर IPL भी कहा जाता है। सर ये क्यों कहा जाता है आपको? मैं IPL 4 बार जीता हूँ 2 बार चैंपियंस लीग जीता हूँ। मेरे हाईएस्ट रन है, बहुत रन है, मतलब जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन पढ़ाई करना बहुत जरूरी। मेरा भी मन नहीं करता था, किसी का नहीं बट मेरे पापा मम्मी मेक श्योर कि मैं 4 बजे उठता था सुबह, लेकिन मैं 9 साढ़े 9 सो जाता था। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं थी, फ़ोन्स नहीं था, लेकिन माँ बाप हमेशा मुझे गाइड करते थे, जितना अच्छा आप खाओगे उतना आपका न्यूट्रिशन आएगा बॉडी में। 8-9 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। आप खेल भी खेलो, लेकिन 2 घंटा अच्छे से खेल खेलो, लेकिन पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। सुबह आप स्कूल आते हो 8-9 बजे, तो 3 बजे तक मन लगाओ, 1 घंटा रेस्ट करो, फिर 5 से लेके 7 बजे तक खेलो। सर आप ये कह रहे हो हमें स्वच्छता और साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, वो आप सही कह रहे हैं। सर मैं भी क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, मैं भी अब खेलती हूँ, बस थोड़ा बहुत आता है, इतना भी नहीं। पर आप कहीं पे, मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ सॉरी, आप कहीं पे खेलने जाते हो जैसे कि बाहर, तो आपको विश्वास होता है कि आप जीतोगे कि हारोगे? नहीं, पूरी मेहनत करके जाते हैं। और अभी तो वुमेन्स लीग भी स्टार्ट हो रही हैं, बहुत सारे बाहर के प्लेयर आ रहे हैं। अभी हरमनप्रीत कौर जीती है WPL, आपने देखा होगा। Yes, sir. यूपी की बहुत लड़कियां खेल रही हैं अभी। और जैसे आपने बोला कि बाहर जब जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है, जैसे आसिफ भाई ने बोला कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप जितना ट्रैवल करोगे उतना आपको ताकत मिलेगी सीखने का, डिफरेंट कल्चर सीखने को मिलेगा, डिफरेंट खाना खाने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मतलब एक इधर जो ताकत होती है ना, छोटे शहरों के बच्चों में बहुत जान होती है वो, लेकिन वो यहाँ से कनेक्ट होता है वो। लेकिन यहाँ शिक्षा जब मिलेगी, आप मेंटल टफनेस आती है आपको ट्रैवल करने से। लेकिन जो पढ़ाई, जो शिक्षा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरी अकेडमी होगी इधर, मैं भी वुमेंस के लिए प्लान कर रहा हूँ। आप मेरी अकेडमी में आइए, सब बच्चों को लेके आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेनिंग करिए और देश का नाम रोशन करिए। But on that note, we are going to be taking a very short break. Coming up are some interesting games which we are going to be playing with the kids, and that in the Swachhta Ki Pathshala. So please stay tuned. So welcome back. You're watching स्वच्छता की पाठशाला और आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हैंड हाइजीन। सुरेश, वी ऑल नो यू लव स्पोर्ट्स, लेकिन आज हम आपको कुछ अलग गेम खिलाएंगे, क्रिकेट नहीं। Are you ready for it? बिल्कुल, लेकिन इसमें ना तो फ्री हिट है ना DRS है, हर जगह तो सांप बैठे हुए हैं। अगर एक बार काटा फिर 0 पे, तो ये मुश्किल गेम है। ये मुश्किल गेम है, बहुत मुश्किल गेम है। तो आइए खेलते हैं। खासकर आई थिंक जब बच्चे तब सीखते प्ले वे मेथड में, जैसे प्रियंका आप ऊपर बता रहे थे, यू नो कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से सीखे, सच इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट प्लेइंग द गेम। चलिए खेलें गेम। आइए, ये सीढ़ी से चढ़ के आना है क्या? अब हम देखते हैं। और ये क्यों खेलते कैसे ये? आई थिंक सुरेश, सबसे पहले प्रियंका, आसिफ जी, वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द किड्स कि ये खेलते कैसे, सांप कब काटता है और हम सीढ़ी कब चढ़ते हैं, बताओ। इसमें तो मन लग रहा है ना। बताओ। सर जैसे कि किसी भी नंबर पे अगर सीढ़ी आ जाए तो वो हमारी अच्छी आदतें हैं, अगर किसी भी नंबर पे अगर सांप आ जाए तो वो हमारी बुराई का प्रतीक है। अगर हम अच्छी नंबर पे गए हैं, मतलब किसी भी नंबर पे गए हैं, उस पर सीढ़ी है, अगर हम उस पर गए तो वो होगा अच्छाई का प्रतीक। जैसे अच्छा प्रतीक मतलब अच्छी आदतें, मतलब जैसे रोज़ नहाना, रोज़ नए कपड़े पहनना, ब्रश करना, नेल्स काटना आदि, ये सब। अगर हम सांप पे गए किसी नंबर पे, अगर कोई सांप हो, अगर हम उस पर पहुँच गए तो क्या होते हैं बुरी आदतें। जैसे बुरी आदतें मतलब नाखून चबाना, ब्रश नहीं करना रोज़, और रोज़ नहीं नहाना, गंदे कपड़े पहनना। ये बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके, आज अच्छे आए हुए आज। सो गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स, आई थिंक वही है सांप और सीढ़ी। सो शुरू करें गेम। चार इधर, एक पैर से या 2 पैर से? चार। ये मेरा फेवरेट कलर है, येलो। अभी सांप भी नहीं आया, अभी आएगा। छक्का। फिर से होगा 6 के बाद। 14। लो मैं करता हूँ इस बार। पाँच। 6।
सीढ़ी मिल गई, गुड हैबिट्स। ओए सुरेश 38। क्या गुड हैबिट्स? टेल मी व्हाट वाज द गुड हैबिट? हाथ धोना। नहीं, वॉशिंग इम्पोर्टेंट है। हाँ। और जैसे आशीष ने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप स्कूल आते हो, सारा सैनिटेशन करते हो, अपना वॉशिंग करना, और मेक श्योर अभी इनका लंच टाइम भी, अभी खाना खाएंगे तो उनको सबको हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि अभी खेल रहे हैं हम लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, गेम बहुत अच्छा है ये। एक बार देखें कि लास्ट टाइम की सांप काटता है कि नहीं। सुरेश के बैड ये आप कटवा के मानोगे। इट्स अनदर 2, सो बच गया सांप। ओके, सांप टू रोल इट वंस। 3। काट दिया। So what was the bad habit, सुरेश? आई थिंक मैंने वॉश नहीं किया होगा हैंड। बच्चों, आपने देखा कि किस तरह जैसे आशीष ने सुरेश को एक्सप्लेन किया कि अगर गुड एंड बैड हैबिट्स में क्या कनेक्शन है। सीढ़ी चढ़े थे जब गुड हैबिट्स से, जब सुरेश ने हाथ धोए थे, एंड ही वाज ट्राइंग कि सांप ना काटे, लेकिन फिर भी बैड हैबिट्स, अगर हाथ ना धो या एनी बैड हैबिट्स, इट टेक्स यू डाउन। So अब सुरेश, let's launch the podcast. I think it's a very, very good initiative, as you mentioned earlier. I think starting from the school is very important. And जो हमने गेम भी खेला है कि लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत है, वो आप कभी रन नहीं बनाओगे, नीचे आओगे, फिर सीढ़ी मिलेगी आपको, लेकिन कैसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करना है, आई थिंक वो स्कूल से स्टार्ट होता है। आई थिंक NDTV ने जो इनिशिएटिव लिया है स्वच्छ भारत का, वो जो बनेगा स्वस्थ इंडिया, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और हर स्कूल में होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि 24 मिलियन, आसिफ भाई ने जो बात की है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ रहे हो, और आई थिंक वो इससे बड़ा क्या होगा जब आप स्कूल में स्टार्ट कर रहे हो, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं अपनी वाइफ की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा। So since Suresh has launched the podcast, India's first public health and hygiene podcast, let's go see what this podcast is all about. अरे दीपक, तुम हाथ धोकर आ भी गए? हाँ सर, जल्दी से धोकर आ गया। क्या तुमने हाथ ठीक से धोए? हाँ सर, मैंने हाथ साबुन लगाकर धोए। अच्छा, आओ आज हम हाथ धोने के बारे में थोड़ा और समझेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि हाथ धोना क्यों जरूरी है और हाथ धोना कब जरूरी है। खाने से पहले, शौच के बाद, जानवरों को छूने के बाद, कहीं बाहर से, बाजार से, स्कूल से घर जाने के बाद, या ऐसी वस्तुओं को छूने के बाद जो और बहुत लोगों ने छुई हो। नूर, तुम बताओ, हाथों को कीटाणु मुक्त करने के लिए कितनी देर तक धोना जरूरी है? सर, हमें हाथ कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। शाबाश। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोना कोरोना वायरस और अन्य बीमारियों से बचने का बहुत आसान और प्रभावकारी तरीका है। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम हाथ सही तरीके से धोएं, क्योंकि कीटाणु हमारे हाथ में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे उंगलियों के बीच या नाखून के नीचे। तो मेरे साथ आओ। अब हम हाथ धोने की सही विधि समझेंगे। चलो शुरू करें। पहले नल खोलो। अब पानी से अपने हाथ गीले करो। उसके बाद हाथ के दोनों ओर साबुन लगाओ। अब एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालो और अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ो। फिर वैसे ही हाथ के पिछले हिस्से को रगड़ो। अब नाखूनों के अंदर भी सफाई करो। अब उंगलियों के निचले भाग को रगड़ो। अब अपनी कलाइयों को रगड़ो। सब हो जाने के बाद हाथ को पानी से धो लो और फिर अपने हाथों को हवा में झाड़कर सुखा लो। और अगर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो क्या करना चाहिए? अपने पास सैनिटाइजर रखना चाहिए। सैनिटाइजर से हाथ रगड़कर साफ करने चाहिए। सही विधि से हो अगर हाथ साफ, बीमारी नहीं आएगी पास। I really enjoyed playing those Saap CD, you know what we played as kids. Did you all have fun? Absolutely, we enjoyed a lot, especially with the kids. We're reliving the moments. 2-3 बार सांप नहीं काटा है पर चलेगा। मतलब 2-3 बार bad habits and yeah. To understand what really is the aim of India's first public health and hygiene podcast, let's hear from Reckitt's Ravi Bhatnagar. स्वस्थ मंत्रा पॉडकास्ट जो हमने बनाया है,
इसमें 32 एपिसोड्स हैं अभी, और अभी फ़िलहाल ये इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है। इसी के साथ हम अलग अलग इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस को के अंदर इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि जैसे कि आप देखते हैं कि जनरेशन XYZ जो है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका अलग अलग तरह का इंटरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेक सेवी है। तो ये जनरेशन अब बुक्स, पीरियोडिकल्स तो पढ़ ही रही है, इनके लिए हम एक नया फॉर्मेट भी साथ में लेके आए हैं जो कि ये पॉडकास्ट है। और ये पॉडकास्ट जो है कहीं ना कहीं एक ये गैप को फुलफिल करता है जहाँ पे उनको एक क्रेडिबल सोर्स जो कि एडिटॉल और NDTV दोनों हैं, तो दोनों साथ में जॉइंटली जो है ये स्वस्थ मंत्रा जो लेके आए हैं किट को, तो उनको क्रेडिबल सोर्स से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। Before we go, Suresh, last question. Our campaign, which is now in its 9th year, talks about the focus this year is Lakshya Sampurna Swastika, यानी कि health for all, सबके लिए health, right? How do you think as a nation we can reach that goal, that health reaches last mile connect? I think the best way to do it from the school, as you rightly did today. I think doing with the kids, I think is very important. Being a father, being a mother, we see our kids also in a right sort of a direction, because as I said earlier, I think half the day they spend in their school. I think वो school से start होता है. I think this is a very nice initiative by NDTV. I think you guys have been amazing, and a lot of teachers have been supporting this cause also. Absolutely, I think it's very important Teachers for के them बगैर also. कुछ नहीं हो सकता. Absolutely. I think, like you said, rightly said. तो thank you so much. आप आए, मतलब I think it's big motivation to the children. ये स्वच्छता की पाठशाला, because they look up to the people. Thank you so much for joining. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.